یوم اردو اور دوسرے ہمارے مہمانان اعزازی آج کی صدارت الحاج مقصد رمضانی صاحب کے ذمے ہے. اس کے بعد ہمارے مہمان اعزازی آپ ڈاکٹر شاہد جمیل صاحب ہیں پٹنہ سے آپ تشریف لائے. آپ بہار سرکار میں حکومت ہے. آپ سے ہونا ایک بات ہے اردو زبان میں ادب سے منسلک ہونا اردو بات ہے. دوسری ہمارے درمیان وہ شخصیت ہے جو خالد سودانی صاحب اور ہمارے درمیان ہمارے اپنے جہانگیر صاحب انقلاب بہت مشہور اخبار ہے اس کے آپ نامہ نگار ہیں. نامہ کا اختصاص یہ ہے کہ آپ نے اسی درمیان میں اپنے شہر سے محبت کرتے ہوئے آپ کو مضامین آپ نے اتنے لکھے کہ آپ کی ایک کتاب وجود میں آ گئی. حضرات ہمارے سرپرستوں میں بھی چند حضرات ہیں چند شخصیات ہیں. ڈاکٹر اختر سعید صاحب وہ بزم کے سرپرست ہے اس کالج کے سرپرست ہے. کالج سے بڑی وابستگی ہے کئی حیثیتیں ہیں. ابوذر انصاری صاحب قاری ضیاء صاحب جونپوری آپ کو بھی 2 کتابیں آ چکی ہیں. آپ نہ صرف ایک بہت اچھے شاعر ہیں خطیب بھی ہے پیشیمان بھی ہے. آپ تشریف لائے آپ بھی ہمارے اس کالج سے وابستہ کئی چیزیں بھی ہیں. اس کالج کی اپنی اہمیت ہے اس کالج کا اپنا وقار ہے. یہ بڑی عظیم جگہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے رہی ہے. سر شاہ سلمان ہندوستانی مسلمانوں کے لیے سید سلمان رضوی نے کہا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا فرد ہے یہ وہ جگہ. یہ تو ہوئی ایک بات. اس کالج کی خوبی خصوصیت یہاں سے جو بچیاں نکلی ہیں ایک جج ہوئی کوئی ڈاکٹر ہوا کوئی کچھ ہوا اور اسی سال اسی کالج سے پڑھی ہوئی ایک بچی کو ایم اے گولڈ میڈلسٹ ابھی گورنر آئی جاتی ہے وہ ساری انڈیا بیٹھی ہوئی ہے. یہ خوشی کی افسانہ جونپوری ہے اس نے ایم اے کیا ہے اور وہ افسانچے بہت لکھ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب جونپوری صاحب بہت اچھے شاعر ہیں. تاج ڈاکٹر ارشاد بیٹھے ہوئے ہیں ظفرآباد سے تشریف لائے ساحل الگرامی پر. ان کی پی ایچ ڈی ابھی تازہ ہوئی ہے. بغل میں ڈاکٹر کمال اختر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے محمد حسین آزاد پر پی ایچ ڈی ہے. بہت بڑھیا. یہ بچی شہری کو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے شہر کے نمائندہ نامہ نگار ریاض الحق صاحب وہ تشریف رکھتے ہیں. اظہر شمیم صاحب یہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہ تشریف رکھتے ہیں. اور باقی اسیم صاحب آپ دیکھ رہے ہیں قمر جونپوری ہمارا چھوٹا بھائی ہے یہ بھی لانسر ہے. جی جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ اردو کی نمائندہ شخصیات ہوتی ہیں جی قاری ضیاء صاحب تلاوت کلام پاک سے آغاز فرمائیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سب سے پہلے شاہد جمیل صاحب اس تقریب کے شکریہ صاحب آپ تشریف لائے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا. ڈاکٹر شاہد جمیل صاحب کی دلپوشی کی خالص چپراسی صاحب سے بہت شکریہ کہ آپ یہ صاحب تشریف فرما ہے. حاجی صاحب کی دلپوشی ہوتی آئی ہوئی ہے اس میں روزی اثارے نے جیسا کہ چلیے مبارکباد. حق صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائے آپ کی موسیقی کے ساتھ ساتھ اظہر شمیم صاحب سے گزارش ہے کہ قلم میں اللہ نے بہت جان دیا ہے. افسانہ جونپوری سے بھی گزارش ہے کہ آج کی اعزازی تقریب کی صدارت فرما رہے عالی وقار جناب طفیل انصاری صاحب، مہمان اعزازی ڈاکٹر شاہد جمیل صاحب،
नामा निगार रोज़नामा इनकलाब हाजी ज़ियाउद्दीन साहब, खालिद सब्रहदी साहब व सामीन इकराम। आलमी यौम उर्दू की तकरीब अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश 9 नवंबर को उर्दू से मोहब्बत रखने वालों ने पूरी दुनिया में मनाई। थोड़ी सी ताख़ीर के साथ इसी सिलसिले से जुड़ी हुई ये तकरीब भी है, जिस शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल अपने फ़िलसफ़ियाना ख़यालात, दीनी इक़दार और शायरी की बिना पर अजीम शायरों में शुमार होते हैं। वो एक माहिर तालीम और फ़लसफ़ी भी थे, जो कौम की ज़बू हाली पर अफसोस करते और नौजवानों को बेदार करने की कोशिश करते थे। इकबाल का मशहूर पैगाम सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। हज़रात, उर्दू वाहिद वो ज़बान है जो सिर्फ ज़बान की चाशनी ही नहीं बल्कि कौमी भाईचारा और मजहबी रवादारी को फ़रोग़ देने का काम करती है। आज भी हिंदी के साथ उर्दू के इश्तराक के बगैर ज़बान की खूबसूरती पूरी नहीं हो सकती है। उर्दू ने मादरे वतन हिंदुस्तान के बहादुर फर्जिंदों के सीने में न सिर्फ देशभक्ति की जोत जगाई बल्कि इनकलाबी नारों के साथ इनकलाब के शोला ज्वाला बनाकर गुलामी की बेड़ियों को पिघलाने और काटने का भी काम किया। उनकी शायरी का दायरा इतना वसी और इतना अमीर है कि उसमें आज और कल के साथ कई दौर की अक्कासी से लेकर इंसानी ज़िंदगी की फ़िक्र और अहमियत की गुत्थियाँ आसानी से सुलझती दिखाई देती हैं। उर्दू अच्छा, और इरफान भाई आपने बहुत अच्छा किया। देखिए, हम लोग नई नस्ल को उभारते नहीं हैं और हम जिस कुर्सी पर हैं उसको छोड़ते नहीं हैं और दूसरे को मौका नहीं देते हैं। तशरीफ लाए खलील इब्न असद साहब हैं जी, बहुत अच्छे शायर हैं, सहाफ़ी है और खत्ताब बहुत अच्छे हैं जी, बड़े फहीम जी, ये रिसर्च स्कॉलर है। अल्लामा इकबाल पर इसका काम ये आखिरी साल है, उम्मीद है कि मुकम्मल हो जाएगा जी। ये बड़ी बाज़ौक़ है। तो आज रसूली साहब से गुजारिश है कि अब नाज से ज़रा के अल्फाज में क्या जिक्र पैगंबर आए, एक कूज़े में भला कैसे समंदर आए, अब न जाएंगे कभी छोड़ के तैबा की गली, मुद्दतों बाद तो परदेस से हम घर लाजवाब लाजवाब। ऐ शहंशाह दो आलम, ऐ शहंशाह सुखन, बोल उठे आपकी मुट्ठी में जो कंकर आए। बहुत तलमीज़ का बेहतरीन रोज़ी अंसारी वो कुछ अपनी बातें करेगी। तशरीफ यहाँ लाकर महफिल ये संवारी है, तशरीफ यहाँ लाकर महफिल संवारी है, आप यहाँ आए तकदीर हमारी है। खुदावंद तेरे नाम से आगाज़ करती हूँ, तेरी बंदी हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करती हूँ। फ़कत तेरी मदद व इस्तानत के भरोसे मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करती हूँ। तू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाम, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। उर्दू पढ़ने लिखने वालों की तादाद बहुत ही कम होती जा रही है। और आलम तो ये है कि जो लोग उर्दू जानते हैं वो भी उर्दू की तारीख से नाआशना है। पढ़ने वाले बहुत हैं फिर भी मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ। उर्दू को हम एक रोज़ मिटा देंगे जहाँ से कि उस बात भी उस कमबख्त ने उर्दू में कही थी। हिंदू भी बोल लेते हैं, मुस्लिम भी बोल लेते हैं, जिसमें एक जहाँ है उर्दू ज़बां हमारी। सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी बहुत लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। आज चंद मिनट के लिए अपनी बात कहो। जिंदा रहता है वो तारीख के ऐवानों में, अपनी तहजीब व तमद्दुन को बचाने वाला। उर्दू एक मुकम्मल तहजीब का नाम है। इसलिए ज़रूरी है कि हम उर्दू को सीखें, सिखाएं, पढ़ें और पढ़ाएं। उर्दू की तालीम को अपने घरों में वापस लाएं और अपनी बेटियों को उर्दू ज़बान की तालीम देना बहुत ही ज़रूरी है। कहते हैं कि बचपन ने हमें बख्शी है ये शीरी गुफ्तारी, उर्दू नहीं हम माँ की ज़बान बोलते हैं।
اردو ہے میرا نام، میں گنگا میں دھلی ہوں، اس چاؤ سے راوی کے کنارے میں پلی ہوں، میرا کوئی مذہب نہ دھرم نہ بسیرا، لندن میں بھی لگتا ہے میرا میلہ۔ یہ سب اسی کالج کی پڑھی ہے، اس سے اس اسکول کی اس اہمیت کا بھی اندازہ لگا لیجیے کہ اردو کا یہ حال ہے، یہ بچیاں آگے کرنے گئی۔ جی جی، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی۔ یہ اس نمونہ ہے اس کالج یا اسکول کا نمونہ۔ اس اسکول کی دین ہے، اور جج بھی ہے، جی ڈاکٹر ہوئی ہے، گئی سے نکل کے پرنسپل ہوئی ہے۔ جی، اس اسکول کا یہ فیض رہا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب گزارش ہے جناب خلیل ابن اثر صاحب سے۔ کل تو آیا ہوں میں سورجوں کے نرغے سے، مگر وجود کی پرچھائی چھوڑ آیا ہوں، وہ جس کو ناز تھا اپنی ستمگری پہ بہت، میں اس کے ہاتھ کی شمشیر توڑ آیا ہوں۔ یوں تو مرتا ہوں ہر ایک روز ہی جینے کے لیے، دل یہ کہتا ہے کسی روز تو جی کر دیکھوں، چند قطروں کو ترستی ہے میری تشنا لبی، حوصلہ یہ ہے کہ صحرا میں سمندر دیکھوں۔ تیرے مسائل کا حل بھی ممکن ہے، تو پہلے اپنی انا کی بلندیوں سے اتر۔ اردو کے جو آج کل حالات ہیں، یہ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اردو والے ہم ہی آپ لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ اردو کو جس طرح سے پیچھے اس کو ڈھکیل رہے ہیں، اور اردو کو بڑھاوا دینے کے بجائے اس کو کوئی اگر بڑھنا بھی چاہتا ہے تو کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی اردو میں کیا کرو گے، اس سے بہتر ہے کہ کوئی کسی اور فیلڈ میں آپ جائیے۔ اردو ایک واحد ایسی زبان ہے جسے تہذیب کی زبان کہی گئی ہے۔ انگلش پڑھائی اچھی بات ہے، آج کے زمانے میں ہونا بھی چاہیے، ہر مادری زبان ہے اردو، اس کو بھی ہم کو بڑھاوا دینا ہے۔ ہم جس نے اس کالج کو قائم کیا الحاج وکیل احمد صاحب انصاری، شیراز ہند جونپور کا سر سید نے انہیں کہہ لیا جائے تو کم نہیں ہے۔ ہوگا بلند اور بھی ہندی کا مرتبہ، اردو زبان کے ساتھ اسے جوڑ دیجیے، مشکل کشائی شان ہے پروردگار کی، غیروں سے مانگنے کا چلن چھوڑ دیجیے، آئینہ پہلے دیکھ لو صاحب، ارے فیصلہ بعد میں کرو صاحب، بات سچی جو تھی کہیں میں نے لو زباں میری کاٹ لو صاحب، درس دیتی ہے یہ قبائے گل، پیار کانٹوں سے بھی کرو صاحب۔ جی جی دونوں اردو اکیڈمی سے انعام یافتہ ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، جی جی، اس شہر کو حفیظ کیا ہم نے لکھنؤ، ٹکسال چڑھ گئی ہے زبان جونپور کی، حفیظ جونپوری یہ دعویٰ کرتا ہے۔ جناب ابو ذر انصاری صاحب، آپ تشریف لائے، چند اشعار اور جو کچھ عمل تاثرات۔ میرا خیال ہے بلکہ سبھی جانتے ہیں کہ اردو باہر سے آئی ہوئی زبان نہیں ہے، بلکہ وہ خالص ہندوستانی زبان ہے، اور ہندوستان میں ہی یہ پیدا ہوئی ہے۔ گاندھی جی نے اس کو ہندوستانی کہنا پسند کیا، اور بیوہ کی فریاد کی جو زبان تھی، الطاف حسین حالی نے جو اس میں زبان استعمال کی، کہا یہی زبان جو ہے رکھی جائے، یہ اردو اصل ہے۔ شعلہ بدوش ابر کا ڈر کچھ نہ کچھ تو ہے، منظر وہ اب بھی پیش نظر کچھ نہ کچھ تو ہے، اب کچھ وہی ہے ٹھیک، مگر آپ اور ہم ہوتے نہیں جو شیر و شکر کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اب مانیے نہ مانیے اس خاموشی میں بھی طوفان چھپا ہو چاہے شرر کچھ نہ کچھ تو ہے۔ بہت اچھے ہیں لوگ شعر، مگر کیفیت کہاں، میرے سخن میں درد و اثر کچھ نہ کچھ تو ہے۔ بوزل پتہ کرو تو بہاروں کے شہر کا، اٹھا ہے آج درد جگر کچھ نہ کچھ تو ہے۔ حضرت رشید احمد صدیقی نے کہا ہے کہ مغلوں نے 3 چیزیں ہندوستان کو دی ہیں، اردو زبان، تاج محل اور غالب جیسا شاعر۔ یہ احمد حفیظ جونپوری صاحب آپ ہیں۔ محسن علم و ہنر حضرت خسرو آئے،
ہندوی باغ سے لے کر گلے اردو آئے، نظروں سے جب بھی میری ان کی گفتگو ہوئی، ایسا لگا نماز میری بے وضو ہوئی۔ موسم کا جب مزاج بنا تو ہوا کے ساتھ بارش ہوئی تو خوب ہوئی، 400 ہوئی۔ جس کو بڑے ہی لاڈ سے پالا تھا عمر، بیٹی پرائے گھر کی وہی اب بہو ہوئی۔ وہ لفظ اس نے بولے جو شیریں زبان سے، چٹکی بجاتے ہی ساری حرارت لفو لفو ہوئی۔ میں تو غریب شہر کا ٹھہرا امیر شخص، رسوائی میری جا بجا اور کو بکو ہوئی۔ ہر مسئلوں کا کچھ تو نکلتا مگر حفیظ، اب تک جو گفتگو ہوئی سب فالتو ہوئی۔ جناب ڈاکٹر احمد سعید مسیحا صاحب نظم میں اپنے کچھ تاثرات جیسے چاہیں۔ وہ دل سے نہ کیوں کر رب بھبوکے، کبو تھے آشنا ہم بھی کسو کے۔ خبر بھی آنے سے رہ گئی ہے، کبوتر اڑ گئے پیتم کے کو کے۔ یہ بھی ہے کہ ہمارا یہ کالج جو ہے یہ اردو میڈیم سے سٹارٹ ہوتا ہے، کلاس 1 سے ہی۔ اس میں بھی غیر مسلم بچیاں بھی آتی ہیں تو وہ بھی اردو پڑھتی ہیں، ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں میڈیم اردو ہے۔ انگریزی بھی پہلے سے پڑھائی جاتی ہے، انگلش بھی اردو بھی پڑھائی جاتی ہے، ہندی پڑھائی جاتی ہے، لیکن میڈیم جو اس کو رکھا گیا ہے اردو ہے، تاکہ یہ تہذیبی زبان جو ہے یہاں گھروں گھروں میں موجود رہے۔ یہ کام بہت اچھا اردو کا ہو رہا ہے۔ میں زندگی ہوں بظاہر میں آن بان میں ہوں، مگر یہ سچ ہے کہ ہر لمحہ امتحان میں ہوں۔ میری نگاہ میں منزل کی جستجو ہے ابھی، مجھے نہ دیکھ کے سمجھو کہ اطمینان میں ہوں۔ میرے لہو نے ابھی حوصلہ نہیں ہارا، تھکا ہوا ہوں مگر پھر بھی میں اڑان میں ہوں۔ میرا ہی ذکر یہاں ہے وہاں بھی ذکر میرا، ہزاروں سال سے شہرت کے آسمان میں ہوں، اور میں کشمکش کی فضا سے نکل نہیں پایا، دل و دماغ کے سرحد کے درمیان میں ہوں، اور یہ حال کے زخموں سے چور چور ہوں میں۔ ادھر وہ کہتا ہے میں تیرے جسم و جان میں ہوں، ایک لمحہ یہ سانسیں بتا رہی ہیں مجھے، ہر ایک پل میں کسی شخص کی کمان میں ہوں۔ میری تلاش میں تم دور تک نہ جایا کرو، گلوں کے رنگ میں دھڑکن میں ہوں، مزان میں ہوں۔ نوید ذوق تھا قوموں پہ علم و فن میرا، میں جون پور ہوں مشہور ہے وطن میرا۔ ہر ایک گل سے نمایاں ہے باپن میرا، میں جون پور ہوں مشہور ہے سخن میرا۔ گزارش ہے جناب انصار دیوپوری صاحب سے، مقدر میں لکھا تھا وہ سبھی کو مل گیا، وہ کسی کو مل گئے ہیں میں کسی کو مل گیا۔ ظلمت کیوں کر رہی ہے آندھیوں سے مشورے، کیا سراپا نور کوئی تیرگی کو مل گیا۔ چار اگر ملتے ہیں بس تیرے ہی ہاتھوں کے نشاں، کب ہنر قاتل کا یہ چارہ گری کو مل گیا۔ ٹوٹی کشتی کے سہارے ہے سمندر کا سفر، بے خودی لے کر کہاں آئی بس اتنی ہے خبر، سن رہا ہوں میں اسی کا تھا اسی کو مل گیا۔ اب نہ رونے پر ہے پابندی، نہ ہنسنا جرم ہے، نہ ہنسنا جرم ہے، اختیار اتنا تو میری بے خودی کو مل گیا۔ خوش بھی انصار اس کا، بے خودی بھی اس کے نام، وہ بچھڑ کر یوں لگا کے دو گھڑی کو مل گیا۔ بس میں حفیظ کے روح روا حسین مچی شہری صاحب سے گزارش ہے، وہ شخص اصل میں اپنی خبر نہیں رکھتا جو اپنے عیب پر اپنی نظر نہیں رکھتا۔ میرا خیال تو جاتا ہے آسمانوں تک
पड़ोसियों की मैं लेकिन खबर नहीं रखता। इतनी हैरत से देखती क्या है, मुझसे दुनिया तू चाहती क्या है। अपनी मुट्ठी में रेत भर लीजिए फिर समझिए कि जिंदगी क्या है। मुझे रोशनी के नाम पे धोखा दिया गया, जुगनू दिखा के बस मुझे बहला दिया गया। मुझे ऐसे नहीं थे जो उन्हें दरिया दिया गया, मेरी मुद्दतों की प्यास को कतरा दिया गया। और गुर्बत, फरेब, रंज व अलम और बेबसी, नन्ही सी मेरी जान को क्या क्या दिया। बहुत अच्छा। अब बड़े ही अदब और एहतराम से गुजारिश है जनाब खालिद सबरानी साहब, जो मेज़बान और मेहमान आपकी दोनों हैसियत है। आप तो पहले मैं एक कथा उर्दू के हवाले से आप हजरात को इरशाद कर दूँ। मत पस्त इसको जानिए, उर्दू है इसका नाम, तस्खीर दिल का इसमें है पिन्हा हुनर तमाम। लश्करी ज़ुबान बसा इसमें एक जहान, दुनिया यूं ही तो आई नहीं इसके ज़हर दाम। दो रुबाई। हर चेहरे बेनूर मनव्वर कर दे, कमज़ोर को जब चाहे तवंगर कर दे। अल्लाह तेरे कब्ज़े कुदरत में है सब, जिस रहत तू राज़ी है उसी पर कर दे। जिस माशूक से मगलूब है आशिक की अदा, है इश्क़ हकीकी की अजब अपनी फ़िज़ा। जब इश्क की सहबा का नशा चढ़ जाए, मंसूर भी देता है अनल हक की सदा। औरों से हसद जो भी किया करते हैं, वो ज़हरे हलाहल ही पिया करते हैं। खालिद यारज़ा है लाहक उनको, जो खौल में अपने ही जिया करते हैं। ताबीर के हुसूल की हो चाशनी भी साथ, जिंदा अगर है ख्वाब तो है ज़िंदगी भी साथ। अशकों का भी मिजाज समझना है सहल कब, छलके है आँख जब के हो लब पर हंसी भी साथ। छलके मगरूर कर न जाएं फरावानियाँ हमें, शायद इसीलिए तो मिली है कमी भी साथ। अब वक्त अर्श से हमें ले आए फर्श पर, मसनद अगर मिली है तो रखिए दरी भी साथ। मुर्दा ज़मीर लोग सियासत में आ गए, तुर्रा ये इस पे खूब के है बेहिसी भी साथ। जी खालिद गनी में जां के हवाले किया था दिल, ए काश मिलती हुस्न को दीदावरी भी साथ। अब बड़े ही अदब और एहतराम से पटना से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दोस्त डॉक्टर शाहिद जमील साहब, आप नाक़िद भी हैं, अफसाना निगार भी हैं, मुतरजिम भी हैं, आपकी कई हैसियत हैं, साफ़ी भी हैं। लेकिन हमारा रिश्ता जो है वो उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से है। किसी के आए ना आए हो, हमारे अच्छे दिन आज ज़रूर आए, अच्छा दिन तो आ ही गया। अब गुजारिश है डॉक्टर शाहिद जमील साहब से, जौनपुर के इल्म अदब के दानिश कदा के आप तमाम कहकशां, और इस कहकशां के दरमियान मैं एक कमजोर सितारा, जब भी सरफराज किया जाता हूँ अल्लाह का शुक्र करता हूँ, बंदे का नहीं, इसलिए कि बंदा अल्लाह के हुक्म से कर रहा है। खतरा में मुकर्रम तो मामला ज़बान का भी है और दिल का भी है, लेकिन पैमाना आदमी का वो होता है कि दिल में कितनी जगह है, और जब दिल में जगह है तभी हर जगह जगह है। मैं इरफान भाई के दिल में हूं, इसीलिए इनके घर में हूं। दिल में नहीं होता है तो घर में नहीं होता। अपनी किस्मत पर खुद रश्क करता हूं कि हम जौनपुर के अदबा और शोरा से रूबरू हुए, और दो तीन बातें इस प्रोग्राम के तहत मैं सबसे अच्छी बात यहाँ मुझे लगी, यहाँ शायरों की तौकीर है। बेशतर जगहों मैंने देखा कि शायर बेतौकीर होते हैं। जब कोई प्रोग्राम होता है तो बोलने वाले प्रोफेसरान, मुकर्रीन, मेहमानान जी वकार, पुरवकार और एजाजी ये सब बोल लेते हैं, तो शायर पर कदरें लगाया जाता है। बस चुनिंदा कलाम, वो तरन्नुम में ना पढ़े, दोहराए नहीं, सारा आज़ाब उनको डाल दिया गया। इसीलिए मैंने शायरी नहीं की, इसी हसर को देखकर। दो बातें, अगर आप खामोश रहेंगे
तो आपके इल्म जाहिर नहीं हो पाएंगे। आप आलिम हैं, आलिम अगर खामोश है तो वो इल्म कब्र में लेकर चला जाएगा। आलिम को बोलना है, और अगर जाहिल है तो उसे खामोश रहना है। जाहिल बोलेगा तब भी जहालत का ऐलान करता हुआ चला जाएगा। कि बोलना भी है, मोहतात भी रहना है। तो सामईन अगर संजीदा हो, सामईन अगर दानिश्वर हो, तो वहाँ कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात करनी चाहिए। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जौनपुर के अदबा व शोरा के रिकॉर्ड करूं, क्योंकि मैं यूट्यूब चलाता हूं, और यूट्यूब भी मैं अपना इनफराद के साथ बड़ी और अहम शख्सियात से मैं गुफ्तगू करता हूं, और उस गुफ्तगू को मैं पेश करता हूं। इसकी फिक्र नहीं करता हूं कि देखने वाले कितने हैं। खुशी इस बात की होती है कि देखते हैं कि भाई अच्छे लोग देख रहे हैं, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। खुशी है कि यहाँ वालों को मैं लोगों को दिखाऊंगा कि जौनपुर कैसा है, और जौनपुर के अदबा व शोरा कैसे है, उनका कलाम किस लेवल का है। मैं ये भी रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ कि इरफान साहब ने यहाँ की बच्चियों के बड़ी तौकीर बढ़ाई है। उम्मन ऐसा नहीं होता है, मैंने नहीं देखा। यहाँ मैंने ये महसूस किया कि आप लोग आने वाली नस्लों की परवरिश भी कर रहे हैं, और ये बात अच्छी है कि आप अपनी बच्चियों को, अपने जूनियर्स को, अपने हमअसरों को प्लेटफॉर्म दें। हमने देखा कि एक साहब बोल नहीं रहे थे, इनको बुलवाया, और वो आए तो बहुत अच्छा बोला। अगर मंच नहीं देंगे तो आप अपनी नस्लों की तरबियत नहीं करेंगे। बेशक बेशक। तो ये दो बातें हैं। और जितनी भी यहाँ पर बच्चियाँ मौजूद हैं, और जिन्होंने बोला उनका जौहर खुल गया, उनका जौहर खुल गया, वो रिकॉर्ड हो गई। उनको जो सुनेगा लगेगा कि जौनपुर की जो बच्चियां हैं वो भी प्रोग्राम में चार चांद लगा सकती हैं। तो ये बात भी हमने यहाँ महसूस किया कि आप अपनी नस्लों को भी तरबियत कर रहे हैं। दूसरी बात कि आप अपने हम असरों में यहाँ कोई रकाबत भी नजर नहीं आई। मैंने बहुत जगह ऐसी देखा है कि नाज़िम चाहे वो मुशायरा का हो या सेमिनार का हो, वो अपनी दुश्मनी भी निकालता है। ये मेरे महसूसात हैं, ये मेरे मुशाहदात में है। अगर नापसंदा शख्स है तो उसको 2-3 बार पुर्जी पकड़ाएगा, वो तितलाने लगेगा, हिटलाने लगेगा, लेकिन उसका सारा फ्लो खत्म हो जाएगा और बैठ ही जाएगा। तो हमने यहाँ ये भी महसूस किया कि इरफान भाई ने प्रोवोक किया, आप बोल सकते हैं, बोलिए, और हिस्सा भी नहीं काटा। हजरत का हिस्सा नाक पढ़ा के लोग काम चला लेते हैं लेकिन इनको नाक पढ़ा के काम चलाया नहीं गया, इनको टहलाया नहीं गया कि आप तो नाक पढ़ चुके हैं, आपको कलाम सुनाने का भी मौका मिला। ये भी मैंने देखा कि आप अगर अपने ही लोगों की इज्जत नहीं बढ़ाएंगे और बाहर वालों के सामने नहीं बढ़ाएंगे तो कब बढ़ाएंगे, तब आपको कब मौका मिलेगा। ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी। अपने अखलाक से, अपनी मोहब्बत से, अपने तहजीब से आप तमाम जौनपुरियों ने मुझे अपना मुरीद बना लिया है। लेकिन नौकरी को मैंने हमेशा अलग रखा, इसलिए कि वो मेरी रोजी रोटी का जरिया है। इरफान भाई का जो रोजी रोटी का जरिया है उससे अदब मुसाफिर नहीं हो रहा है, बल्कि अदब जिंदा है उसी रोजी रोटी की वजह से। और आखिरी और अहम बात ये, इस राज को भी मैं खोल देता हूँ कि ये चादर जो है सब पहने रहा, इसका क्या राज है। मैंने एक बहुत बड़े आदमी से एक बात सीखी, और एक बात जान लीजिए, जब जागा तब सवेरा, और जब सीखा तो अमल नाफिजुल अमल हो गया। सर रंगी प्रसाद सिंह कैंसर रोग के पटना पीएमसीएच के बहुत बड़े रिटायर्ड डॉक्टर थे। ये माला है, वो कागज उनको गड्ढे में डाल दे कोई तो वो इसी तरह पहने रहते थे। तो मेरा तजस्सुस बेदार हुआ, हम बहुत नज़दीक तुम समझ रंगी बाबू
सब मलबा उतार देता है, सब ये रख देता है, आप काहे नहीं रखते हैं? बड़ा शाहिद जमील, एक बात सुनो, कोई आदमी आपको इज्जत से कर रहा है, हम नेता हैं तो उसका हाथे से माला रख के टेबल पर रख दिया, उसने इज्जत दिया है तो कम से कम प्रोग्राम तक तो इज्जत महसूस कीजिए, बाद में तो ये आपकी चादर कोई लूट लेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और होनहार तलबा और तालबात, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और डॉक्टर शाहिद जमील साहब ने जौनपुर के हवाले से जो बातें कही वो हम सब के लिए, सभी के लिए, अहले जौनपुर के लिए, जौनपुर के सवालों अदब से बहुत अच्छी बातें कही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दबिस्तान जौनपुर के कुछ हमारे सरपरस्त मास्टर तुफैल सारी साहब सदारत फरमा रहे हैं, आपसे बड़े अदब बड़े गुजारिश है। हम तमाम सामीन का समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी आमद ने इस महफिल में चार चांद लगा दिए और इसका सेहरा जो है इरफान जौनपुरी के सर जाता है। इन्हें जब भी मौका मिलता है, अगर नहीं भी मिलता है तो मौका निकाल लेते हैं और इस तरह की बद में सजा देते हैं। ये जो कुछ आज हुआ सब इन्हीं की देन है और इन्हीं का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम लोग तो एक तरह से तुफैली बन करके आए हैं, लेकिन ये वाकई ये हमारे शहर के लिए काबिल तकलीद हैं कि इस तरह के प्रोग्राम ये करते ही रहते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं और मौका मिला नहीं। उर्दू के शैदाई हैं, उसके आशिक हैं, उस सिलसिले में कुर्बानियाँ भी देते हैं और चूँकि मौका नहीं है, वरना बहुत सी बातें कहने का जी चाहता था। ख़ास तौर से शाहिद जमील साहब से तो मैं वाकिफ़ था और वक्त की भी तंगी है, लेकिन आपकी बातें बहुत ही कारामद हैं, उसको जहन में रखने की चीज़ है। दो एक बातें तो बहुत उम्दा आपने कही हैं, तजर्बे में भी आई हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस बज़्म की बदौलत सब लोगों से तारुफ भी हो गया और खालिद सबरहदी साहब का नाम तो सुनते थे इरफान ही से, आज फिल्म मुशावरा इनसे मुलाकात भी हो गई और जो लोग हैं सब जाने पहचाने लोग हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम होता रहे, हम लोग मिल बैठें और उसमें अपनी बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और ख़ास तौर से इरफान जौनपुरी का भी बहुत शुक्रिया कि उन्हीं की काविश से ये बज़्म आरास्ता हुई और ये बज़्म उन्हीं की देन है, इसलिए हम सब उनके शुक्रगुजार हैं। जाए लोगों ने जो कहा उस पर भी दो बातें, एक तो किसी भी तकरीब के आखिर में बज़्म की जानिब से रस्म शुक्रिया होती है और रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है कि जो रस्म शुक्रिया है वो अमूमन अफरा तफरीक का शिकार होती है। कोई कहता है सदर के बाद कोई उड़ गया, कोई कहता है प्रोग्राम खत्म हो गया चलो, कोई कहता है नहीं उठ गया। एक अच्छी बात है कि मास्टर साहब की सदारती गुफ्तगू के बाद आप हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मैं बज़्म की जानिब से, अपने सदर जनाब वसीम मजीद शहरी की जानिब से, अपनी जानिब से के नाम पर है पानी पी के तब तशरीफ़ ले जाए, वो तैयारी है। हाँ वो कर लीजिए और फिर दुआ कीजिए कि ये तकरीब मुलतवी की जाए। मोबाइल